Good morning, everybody. Welcome to Digital Sickness powered by Sai Educational Institute. Okay, in the previous class, we have covered a very important index property, that is your relative density, and in this and also some portion of your functional relationship. Now, in this class, also we'll go for some another index property and we'll cover some problems. Okay, so you go through the index, so relative density. If you are facing any problem, because the last video was just a little bit poor, but you go thoroughly, and if you are facing any doubt in case of your relative density, then you can ask in the group or any via media. Okay, so now come to another index property which is very very important also, that is your soil color. Okay, so पिले गोटे soil रो color आमे केमिति जानिबा ना by observing a single particle also we can find the color of a soil. गोटे single particle भी जति के आमे soil रो नबा, we can able to identify the color of that soil, and due to that reason a soil color or a soil color as an index property is specially known as a soil grain property. Soil index property टा कौन पिले दी प्रकार, soil aggregate property and soil grain property. So जेहेतु गोटे particular आम identify करि परुचे, that's why soil color is a soil grain property. Okay, now come to the point that soil color केमिति हे पारे कौन कौन हे पारे. सॉइल कलर पिले बहुत प्रकार हे पारो, किछि भी हे पारे, जते प्रकार कलर तुम जानि छ, एनी टाइप ऑफ कलर यू नो सब हे परिबो, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाइट थ्रो रेड अप टू ब्लैक. व्हाइट रो रेड, रेड रो ब्लैक, किछि भी कलर हे पारे. ताले एटा होछि केमिति ना, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स सम इनग्रेडिएंट्स, इट डिपेंड्स सम इनग्रेडिएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड सॉइल. गोटे सॉइल भितरे एमति किछि किछि इनग्रेडिएंट्स अछंती दैट प्रोवाइड्स द कलर, और सम फैक्टर्स वी कैन से, some factors are responsible for the coloring of a soil, particular soil. So what are the factors or parameters? So some of the factors which governs the color of soil are, the first one is pile kono, mineral particles, means को टाइप रो मिनरल पार्टिकल्स से सॉइल टा कंटेन करूची. सेकंड होची कोन पिले, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, means को organic matter ସେଥିରେ ଅଛି. And the third, not the least one, that is your coloring oxides, coloring oxides. So को coloring oxides present अछंती, बुझला. So these are the points which are responsible for giving color to a particular type of soil, बुझला. Now come to another very much important index property, that is पले कोन, soil shape and size. So now come to size. तो पिला में size को जेतेले जिबा हम तुमको कहिछि, if you will take a if you will go to the field and take a general soil mass. Okay, so in that general soil mass you will find different size of particles. Okay, so depending upon that different size of the particle we are giving some names, बुझिला ना नहीं. so गोटे general soil mass आइलो सेतरे different size रो particles थिबे, तो से जो different size रो particles थिबे, तो सेतर जो किछि गोटे रेंज रे गोटे पर्टिकुलर सेल थिबो, आ किछि गोटे रेंज रे आ गोटे पर्टिकुलर सेल थिबो, एभଳି थिबो. तो जो डिफरेंट साइज रहिला, तो गोटे गोटे पर्टिकुलर रेंज पर्यंत, रेंज ऑफ पर्टिकुलर साइज को हम गोटे गोटे पर्टिकुलर नेमिंग दोछे, बुझला ना. तो ताकू हम पर्टिकुलर साइज बोली कहूची. मींस सपोज दिस साइज टू दिस साइज, ए रेंज को ए सॉइल मु कहबी. तो लाइक दिस आई एम गोइंग टू गिव अ टेबल, गोटे टेबल दोची जोठरे कि एतिकी साइज पर्यंत ए सॉइल रहउची, बुझला. दैट इज कॉल्ड योर पार्टिकल साइज. ओके, so the very first one is your play kono na clay soil. What is that? Clay. So play clay ro soil ro size kete asibo, if the particle size is less than 0.002 mm, then it will be called a clay soil. Now second ta play kono hochi silt, that is your silt. So the second soil is play kono silt, and if the particle size is between 0.0022 to 0.0022 केते हेजियो पिले ना 0.075, then ताको हमें कौन करबा पिले ना silt. But again that silt is divided into three types पिले. What are the three types? ना that may be a coarse silt, that may be a medium silt, that may be a fine silt. Okay, so what are the different sizes then? So for fine silt it is 0.002 to 0.075.
0.01 mm, then 0.01 to 0.02 mm, then 0.02 to 0.075 mm. Again, ଯେତେବେଳେ ପିଲା coarse grained and fine grained soil ମୁଁ ତମକୁ ପଢ଼େଇଥିଲି, at that time I have already told you that if the size of the particle is less than 0.075 mm, then it is called a fine grained soil. So this is the limiting size here. So it also पिला किते? Now this is the 0.075 mm size. So याठू जतिकि less आसिले means in this direction the soil is called पिला कौन? ना fine grained soil. बुझेला. So 0.075 ରୁ कम जतिकि आसला fine grained soil, and I have given the examples of fine grained soil कौन ना silt and clay. So देखिला पिले, so silt रू clay पर्यंत जहाँ भी soil आसी these are fine grained. Okay, now after silt कौन पिले ना this is sand पिले. Suppose this is sand. Okay, now this sand is having size between कहाँ कहाँ भीतर रहइबो ना 0. कौन पिले ना 0.75 to 4.75 mm. ताले में ताको sand कहबा. Again this sand is of three types पिले. Like your silt, sand is also three types. What are the three types of sand? That is coarse sand, medium sand, and also fine sand. So what are the size of your fine sand? Fine sand रो size ताले केते ही जिवो ना 8 ही start होबो. So 0.075 रू 0.425 mm, that is fine sand. 0.425 to 2 mm, and 2 mm to 4.75 mm your coarse sand. Next size of soil is or type of soil is na gravel. So gravel रो size पिले केते ना 4.75 to 80 mm. Then next होची पिले किए. Next अच्छी two types of soil are there next to gravel, but here आमे मु तुमको जेतले coarse grained soil कथा कहिथिले, at that time I have also told you that in case of examples of your coarse grained soil, what it is sand and gravel. बुझियला. So generally गोटे soil रो गोटे sand और gravel ही coarse grained under रे आछंदी. So from this point onwards the soil is coarse grained, but generally gravel beyond gravel to बड़ जति particle होइला हमें ताको coarse grained soil बोली consider करूनी. We are considering up to this only coarse grained soil. So from this is the range of a coarse grained soil. So this is called pile kono na coarse grained soil. Coarse grained soil. Then after that pile kon कहिबा एइठ होती कि ना this range is called pile कोन ना ताको rock fragments बोली भी consider करि परिबा. So क्षेत्र किए क्या आसुछंदी water there are two types remain, that is your कोन पिले ना first one हे परिबो तमर cobble and एटा हे परिबो पिले किए ना boulder BOULDER. Okay, so cobble size is between 80 to 300 mm and greater than 300 mm is your pile kono boulder size. So this is all about your pile kono size of soil. This is all about your pile kono size of soil. बुझेला. तो ये बड़े साइज ऑफ सोइल कराई छी तमे 0.075 रू कम ले फाइन ग्रेन सोइल ता अंडर आसला सिल्ट एंड क्ले टा लेस एतिक रहउची सिल्ट टा अगेन थ्री टाइप रो. देन ग्रेटर देन 0.075 हेले ताको कोर्स सोइल कहबा, बट तार साइज कोन एनी साइज यू कैन नॉट टेक. देयर इज अ लिमिट को पर्यंत ना अप टू 8 mm ताको कहबा कोर्स सोइल. अगेन ग्रेटर देन 8 mm हे गले ताको अब हमें कोर्स सोइल कहबानी, ताको समथिंग डिफरेंट कहबा. व्हाट इज दैट? दैट इज हम ता कहि पारे रॉक फ्रैगमेंट बोली कहि परिबा. ताले कोर्स सोइल रेंज केते ला पिले ग्रेटर देन 0.075 and less than 8 mm को हमें कोर्स ग्रेन्ड सोइल बोली जनरल कंसीडर करछ. एंड दैट एग्जांपल इज सैंड एंड ग्रेवल. बुझेला. दैट सैंड इज अगेन ऑफ थ्री टाइप्स पिले मन नथा केते ना कोर्स मीडियम एंड सैंड विथ रेस्पेक्टिव साइज. बुझेला. ओके. तो एठी पिले जो हमें सैंड को कहिले सॉरी ग्रेवल एंड सैंड कहिले कोर्स ग्रेन्ड सोइल कहिले एठी अगेन टू टाइप रो डिविजन्स अछि. दैट इज
ग्रेटर देन 4.75 लेस देन देख ये 2 रू 4.75 आछी दैट इज एठू याड को गले ताले मु कोन कहि परिबे दिस इज लेस देन 0 सॉरी लेस देन 4.75 कहि परिबे दिस इज एंड ए पॉइंट रो याड को मु कोन कहि परिबे ग्रेटर देन 4.75 कहि परिबे तो ये दुईटा डिवीजन को भी कोर्स सिविंग एंड फाइन सिविंग भी कहती कोर्स सिविंग और फाइन सिविंग दैट इज कहि परिबे सैंड फ्रैक्शन एंड ग्रेवल फ्रैक्शन भी कहि in classification chapter classification of soil or distribution of soil grains distribution of soil रे तुम सेटा पढिबो ओके एटा भी गोटे अगेन क्लासिफिकेशन इज देयर नाउ गो कम टू शेप ऑफ पार्टिकल एबे जिबा शेप ऑफ पार्टिकल पिले ओके सो पिले शेप ऑफ पार्टिकल जो इंडेक्स प्रॉपर्टी मु तुमको कहली दिस इज आल्सो ए कोन पिले दिस इज आल्सो ए ग्रेन शेप प्रॉपर्टी मीन्स इंडिविजुअल पार्टिकल को लेकिन आम शेप ऑफ दी कौन करवा बोले सॉइल काढ़ा ओके नेक्स्ट इज बोले कौन ना शेप ऑफ पार्टिकल so the shape of particles gala pile generally we are dividing the soil into two types we have already studied it what are the two types one is cohesive soil another one is cohesionless soil okay so in case of a cohesionless soil what we are doing or in case of your cohesionless soil it is formed from the pile kono na physical disintegration of a parent rock so that physical disintegration of a parent rocks ru baharuchi and कौन पिले these are the bulky grains हम कहूचे बुझेला so what are the sorry what is the definition of a bulky grain then ना bulky grain होची से grain होच all the dimensions are almost same more or less same तक कहूचे तो what are the all dimensions that is length width and thickness so the particles whose length width and thickness are almost same known as bulky grains बुझेला तो cohesionless soil टाको हम bulky grains बोली मध्य कहूचे and this is formed from sorry produced from the disintegration of or physical weathering of a parent rock ru हम बाहर छि बोली कहूचे so जेहेतु ए physical weathering of parent rock ru बाहर छि ताले तार कोन कोन शेप ऑफ हम देखिबा बुझेला so मो शेप ऑफ द पार्टिकल cohesive soil रे कहली और cohesionless soil कहली so first I will cover shape of a cohesionless soil बुझेला so जेहेतु शेप कोन physical disintegration से soil टा बाहर छि तो सेठी पिले कौन होची इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल सेठी कौन होची ना गोटे शेप रहउची पर्टिकुलर शेप रहउची एंड दैट इज कॉल्ड योर एंगुलर शेप फॉर एग्जांपल देखो पिले जस्ट मार्क दिस डायग्राम सपोज दिस इज योर रॉक दिस इज योर हेवी रॉक नाउ दिस इज योर रॉक पिले सो रॉक रे डिसइंटीग्रेशन जेतले हबो at the place of its formation at this location the shape of the particle will be like this केमिति थिबो suppose ये वाला किसी गोटे थिबो ओके so this is called पहले angular shape what is that तामने at the place of just at the place of its formation soil टा होची पहले ता कोन कहूची angular कहूची angular means कहले पहले कोन बुझुचे what do you mean by angular कहले सही soil particle गुडा कर पहले कोन थिबे ना sharp edges थिबे जेंति कि देखो एठी एटा आहुरी भी sharp हे पारे एमिति ये गोटे sharp edge रहिला ये गोटे भितर केमती पसि जाई ये गोटे शार्प एज रहला एमती एटा भी आउट के बाहर को बाहर जाई पारे तो ये बड़े डिफरेंट शार्प एजेस विल बी देयर सो ड्यू टू दैट शार्प एज कोन होबो पिले ना से जतले कोन करिवो अदर प्रैक्टिकल संस्पर्श रे आसीबो कोन होबो ना देयर विल बी सम रेजिस्टेंस से माने बॉन्डिंग सॉरी नॉट रेजिस्टेंस दैट इज बॉन्डिंग आसीबो तांके भितरे गोटे पार्टिकल आ गोटे पार्टिकल विल ट्राई टू होल्ड गोटे पार्टिकल आ गोटे पार्टिकल को होल्ड करिया को ट्राई करिवो धरिया को ट्राई करिवो बॉन्ड विल बी मोर bond will more means कौन there will be more resistance towards displacement ता माने कौन angular particles और angular shaped particles provides कौन पिले more resistance towards displacement provides more resistance towards displacement means movement हवा को दबनी that is more resistance towards displacement and more resistance towards displacement को हमें कौन कहउछ पिले कौन कहि परिबा ना more shear strength
मन रखि था पिले शियर स्ट्रेंथ क्या कहवा ना गोटे पार्टिकल अच्छे गोटे सॉइल मास अच्छी पार्टिकल भितर जो बेसी स्लीपिंग नेचर रहा मीन्स गोटे पार्टिकल आउ गोटे पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू इच अदर स्लीप करीगले ताले आमे ताकू कहबा जे से शियर करीगला तामाने शियर स्ट्रेंथ तार नाही जदि स्लीप न कले इजिली धरिकी रखिले परस्पर को ताले ताकू कहबा अधिक शियर स्ट्रेंथ अछि बोली ताले एठी मु कोन देखिली रेजिस्टेंस टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेसमेंट होनी मीन्स कोन परस्पर को धरिकी रखुचंदी अधिक परस्पर को धरिकी रखुचंदी माने कोन शियर स्ट्रेंथ अधिक सो इट हैज कोन पिले मोर शियर स्ट्रेंथ ताले एंगुलर पार्टिकल रो हैज मोर शियर स्ट्रेंथ दैट इज मोर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट बट इट हैज ए डिमेरिट कौन डिमेरिट ना इट हैज मोर फ्रैक्चर सॉरी लेस फ्रैक्चर रेजिस्टेंस लेस फ्रैक्चर रेजिस्टेंस लेस फ्रैक्चर रेजिस्टेंस मीन्स कौन ना एंगुलर पार्टिकल जोटा फॉर्म होचंदी पिले से माने टिके थिन थांदी पतला थांदी से पार्टिकल गुड़ा तो कौन हुए ना जिते लोड पड़े कि मूव करती से कौन हुआ ना कि हेवी वेट पड़े तो से ब्रेक कर दिखाती फाटी जाए ब्रेक हो जाए फ्रैक्चर हो जाए सो फ्रैक्चर रेजिस्टेंस इज लेस मीन्स इजिली फ्रैक्चर हो जाए बुझल सो दिस आर द टू इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए angular soil and angular soil angular shape केतेबेले आसीम ना जस्ट इमिडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बट से जो सॉइल टा फॉर्मेशन हैला से कोन सेठी रहिबो चांस नहीं कि माने गारंटी नहीं कि से सेठी रहिबो इट मे बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसपोर्टेड टू सम अवे प्लेसेस सपोज बाय एनी एजेंसी मे बी रनिंग वाटर हो पारे विंड तो नो रनिंग वाटर मे बी कहबी और ग्रेविटी कहबी इट विल ट्रांसफर टू अनदर लोकेशन suppose कौन सी कारण it will be transferred to another location transported then that shape will be given a name what is that name that is like कौन ना well rounded ताले सेठी गला पर कौन बो well rounded हे गला ता माने कौन होला ना इठो एठी जले मूव कला पार्टिकल भीतर सपोज ग्रेविटी हो रनिंग वाटर हो जतले मेनी पार्टिकल्स आर रनिंग एट द सेम टाइम what they are doing they are colliding with each other and due to that collision the sharp edges in case of your angular shape get destroyed and finally the particles is converted to a well rounded shape and in that well rounded shape what happens is due to this smoothness in the surface there will be less resistance towards displacement को resistance मिलिबनी means it will easily slip and due to that easy slipping particle जो easily slip हो जाउछन सेति बाय shear strength will be less and due to since there is कौन पिले लेस थिन मीन्स जो ये कमी जाऊँगी तार कौन बेसी आंगुलारिटी कमी जाऊँगी से पिले कौन ऑलमोस्ट राउंड हो जाती तेणुकर फ्रैक्चर रेजिस्टेंस भी बढ़ी जाऊँगी ताने इजिली फ्रैक्चर हेबेनी ताने यार रिवर्स नेचर होगला फ्रैक्चर रेजिस्टेंस इज मोर डिस्प्लेसमेंट रेजिस्टेंस इज लेस hence shear strength is less okay so this is called well rounded so in between this इठो तो पळे आसलानी उडी के ना it will come through a stage गोटे स्टेज दे के आसीबो so आउ गोटे तीनटा इंटरमीडिएट स्टेप भी अछि what are the different means this is the initial one this is the final one initially ये आतला finally ये हला मझिरे आउ तीनटा स्टेप अछि what are the intermediate steps को अछि कोन पिले एटा होछि पिले कोन angular this will be sub angular then पिले होछि कोन this will be like this sub rounded this will be पिले कोन rounded and lastly well rounded so these are the various steps of a coarse grained or sorry cohesionless soil now come to cohesive soil shape of cohesive soil okay so in case of your cohesive soil pile there are basically two types of shapes what are the two types shapes first होची pile कोन ना flaky और ताकू कहि परिबा pile कोन ना plate shaped flaky और plate shaped means गोटे plate type रे बितो ताल गोटे plate रे कोन pile thickness is very small compared to length and width देखो this like
हमारे यार कौन थिकनेस इज लेस कंपेयर्ड टू लेंथ एंड वेट तो या कहवा फ्लेकी सेप्ड और प्लेट सेप्ड गोटे प्लेट भाई थो तो यार नेचर पे कौन इट इज हाईली कंप्रेसिबल बहुत कंप्रेस हो पार बट स्टेबल इन केस ऑफ वाइब्रेशन अधिक वाइब्रेशन हो पार कि कंप्रेस अधिक हो पार जेहेतु प्लेट सेप्ड इट विल ट्राई टू कंप्रेस सॉरी मोर कंप्रेस हो पार सो कंप्रेसिबिलिटी इज मोर बुझीगला ना कम टू अनदर शेप ऑफ कोहेसिव सेल दुईटा शेप अच्छी पिले फास्टा कहले कौन फ्लेकी शेप और प्लेट शेप देन हूँ पिले कौन निडल शेप निडल शेप देख ये प्लेट शेप कहली मैंने गोटे प्लेट भाया निडल कहली मैंने छुंची बुझल ना निडल शेप मीन्स कहले कौन ना लेंथ इज मोर कंपेयर टू विड्थ एंड थिकनेस लाइक दिस एमती थी सो दिस इज द निडल शेप ऑफ ए कोहेसिव सेल सो गोटे कोहेसिव सेल ये हूँ निडल शेप तो कौन हो पिले दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन केस ऑफ कोहेसिव सेल बुझेला तो ये कोहेसिव सेल कौन हो पिले ना सरफेस रे किसी गोटे चार्ज थाए मुझे पढ़ाई कोहेसिव सेल और कोहेजन लेसर डिफरेंस से कही गोटे सरफेस चार्ज थाए जो चार्ज थे वाटर को अट्राक्ट करे होल्ड करे एडजर्व वाटर बोली कही बुझेगा पार्टिकल अट्राक्शन से जिनसा ये हुए बुझेगा सो दिस इज ऑल अबाउट योर पिले शेप ऑफ ये कौन पार्टिकल्स तमें आम जान कलर कौन जानिले शेप जानिले आउ कौन जानिले पिले साइज भी जानिले सो दिज आर द थ्री इंपोर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल नाउ कम टू द प्रॉब्लम सेक्शन एबे प्रॉब्लम सेक्शन को जीवा बुझेला आम फंक्शनल रिलेशनशिप कर देचे अच्छा हाँ रिलेशनशिप रू मन पड़ा देयर आर बेसिकली 4 to 5 रिलेशनशिप कही वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप कही एंड वॉल्यूम मास रिलेशनशिप कही इवन मास मास रिलेशनशिप क्या कहीपर मास ऑफ वाटर टू मास ऑफ सॉलिड मीन्स मास को लेकिन जोड़ा काढ़ुच सेटा भी कही फंक्शनल रिलेशनशिप क्या कही वन सेवराल इंडेक्स प्रॉपर्टीज भीतर गोटे कौन रिलेशन रखिए दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रिलेशनशिप एंड वन मोर रिलेशनशिप आई हैव लेफ्ट नॉट डिस्कस्ड टिल नाउ दैट इज योर पिला कौन इंटर रिलेशनशिप टाक एपर्यंत डिस्कसन करना व्हाट इज दैट इंटर रिलेशनशिप ना रिलेशनशिप बिटवीन पिले कौन यूनिटी वेट एंड डेंसिटी वर्तमान सुधा मुझे गुड़ा भी रिलेशनशिप तुम मान को करते गुड़ा भी डिराइव करेरिवेशन मु सबुथ कौन नहीं पहले आई हैव रिटन एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी बट इन योर एग्जाम क्वेश्चन में कम इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट्स ऑल्सो बुझेगा ना यूनिट वेट टर्म भी आसी पारे तो यू नीड टू know the difference between your or the conversion or the relationship between your kona unit weight and density okay so what is the relation between unit weight or density मन रखी था पहले unit weight is also called पहले कौन weight density so पहले मु कौन कहिबे याको so your unit weight or weight density that is your gamma is equal to pile na rho into g yes or no so gamma is equal to pile kon na rho g and this rho is called pile kon pile कहबा mass density और सिंपली को डेंसिटी बोली ही कहबा एक्चुअली तो माने कोन हला ना यूनिट वेट और वेट डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बुझेला सो दिस इज द general relationship ता माने a mass density or a density is having some value and unit weight is also having some value तो ताको कोरिलेट के करोची g करोची बुझेला ना नहीं ओके नाउ कम टू यूनिटी ऑफ रो मु एठी कोन कहबी यूनिटी ऑफ रो कहबी रो इज नथिंग बट डेंसिटी तो टू सिस्टम ऑफ यूनिट अछि एसआई अछि पिले आ कोन अछि ना सीजीएस अछि बुझेला सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कोन पिले रो टा होची डेंसिटी सो दिस यूनिट इज पिले कौन ना केजी पर मीटर क्यूब आपको कौन कही पिले ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है बुझेला नाउ ए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का कौन लिख परबी ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब सीसी शॉर्ट रे देन ग्राम पर एमएल भी ताको कही परिबे बुझेला और मिलीग्राम पर मीटर क्यूब भी कही परिबे एमजी पर मीटर क्यूब भी कही परिबे बुझेला नाउ यार कौन है जो पिले means unit of gamma gamma ର यूनिट कौन है जो पिले एठी भी सेमिति हे परिबो एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट आ गुटी यार गुट अछि पिले कौन मीटर केजी सेकंड एमकेएस यूनिट सीजीएस एसआई रे कौन हो पिले न्यूटन पर मीटर क्यूब और माको कहि परिबी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब
एंड इन केस ऑफ सीजीएस कहि पिले कोन ना डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब ओके एंड एठी कोन कहि पारि पिले केजीएफ पर मीटर क्यूब होई पारे बा केजीएफ पर सेंटीमीटर क्यूब होई पारे सो डिपेंडिंग अपन द क्वेश्चन सिचुएशन को लेके हम अकॉर्डिंगली ताको कन्वर्ट करबा एंड मन रखि था पिले 1 kgf is equal to 9.81 न्यूटन यू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप एटा कैमरा आछो तमरो बुझले ओके सो these are the different कोन इंटर रिलेशनशिप नाउ ता माने कोन ना जदी हमको रो डब्ल्यू देछि ताले हम सेत्रु गामा डब्ल्यू काढी परिया बाय मल्टीप्लाइंग जी जी रो वैल्यू होछि केते पिले 9.81 ओके सो सेही अनुसार मु जदी देखिबी ताले मु कहि परिबी एटा इंपोर्टेंट दिस इज इंपोर्टेंट पिले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो डब्ल्यू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गामा डब्ल्यू ए दुटा मन रखियो बिकॉज़ यू आर गोइंग टू यूज दिस टू वैल्यूज स्पेशली तो रो डब्ल्यू हबो केते पिले ना 1000 केजी पर मीटर क्यूब होई पारे किंबा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होई पारे किंबा 1 ग्राम पर एमएल होई पारे किंबा 1 एमजी पर मीटर क्यूब होई पारे किंबा 1 ग्राम पर सीसी होई पारे बुझला तो गामा डब्ल्यू केते हबो गामा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू पिले 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होई पारे which is equivalent to equivalent sign देली मींस हमें गोटे गोटे क्वेश्चन रे 10 भी देई थाए पिले तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर की होई पारे which will be equal to 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब किलो मींस कोन 10 टू द पावर 3 तो मु गणि देली जदी एथरे 10 टू द पावर 3 9810 आ जीवो ओके सो दीस आर द वैल्यूज बुझला एंड which will be equal to कहि परिबा 1000 kgf पर मीटर क्यूब so these are the values you need to remember in order to solve problems let us do some problem so pile तुमको problem solve करबा पई मु कोन करछि ना like this गोटे कोन देछि पेपर मु प्रोवाइड करबी बा ऑलमोस्ट देई देछि तो एथरे कोन हबो ना मते इजी हबो टाइम सेविंग हबो गोटे गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई मु एटी क्वेश्चन दे देली क्वेश्चन देखि तुमको सॉल्व कर देली तुम से क्वेश्चन को देखि की वीडियो गुडा देखिबो सो दैट वी विल सेव टाइम so without wasting time let us solve some problems okay so pile problem karibar ketata नियम मु तुमको कहि दोछि जत्ते बेल भी कोन से भी प्रॉब्लम तुम सॉल्व करछो फर्स्ट क्वेश्चन को भल से पढ़ो फर्स्ट स्टेप यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली then find out the data extract the data then understand what is asked there actually क्वेश्चन की बेले बेले एमिति से पचार थिबो तुमको लागुथबो गोटे दिन से पचार कि पचार छुआ गोटे दिन देखो मु केन सॉल्व करूची फर्स्ट क्वेश्चन पिले कोन अछि ना 1 मीटर क्यूब एटा क्वेश्चन नंबर 1 हला सो लिखिची 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट सॉइल वेट माने कोन मॉइस्ट और कोन पिले पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल देछि ताने मॉइस्ट और पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल देछि बोले हम जान देले बुझला सो 1 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम सॉरी मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम ताने 1 मीटर क्यूब ऑफ मॉइस्ट सॉइल मींस कोन ना सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड इट लिखि देबो मॉइस्ट सॉइल तो इट लिखिबो पिले कोन ना स्टेट ऑफ सॉइल कोन मॉइस्ट सॉइल याकू भी लिखि देला और बढ़िया मॉइस्ट सॉइल पर कोन देछि पिले टोटल वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब देछि आ कोन देछि वेजेस 20 किलो न्यूटन वेजेस मींस कोन से जो टोटल सॉइल देछि तार वेट टा होछि 20 किलो न्यूटन so total mass m is equal to कोन 20 किलो न्यूटन तुमके द्वितीय प्रकार जेतले गामा और रो भीतर रिलेशनशिप कहउथिली सेठी केजी पर मीटर क्यूब थिला आ गोटे किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब थिला माने गोटे मीटर क्यूब वॉल्यूम रो सॉइल जदी नेली ताले से तार केते वेट आछि बा केते मास आछि मास ले केजी वेट ले किलो न्यूटन बा न्यूटन तो किलो न्यूटन देछि माने मते इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट काढिबार अछि बा वेट डेंसिटी काढिबार अछि रिमेंबर दैट पॉइंट तो मास देले टोटल केते 20 किलो न्यूटन तापर कोन कहउछि पिले इट्स ड्राई यूनिट वेट इज सॉरी इट्स ड्राई वेट इज 18 किलो न्यूटन तामे ताको ओवन रखि के ड्राई कोला परे ड्राई वेट इज एमएस सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी एटी पिले डोंट यूज एम और एमएस यूज डब्ल्यू हैव दैट प्रैक्टिस इट इज डब्ल्यू एंड दिस इज डब्ल्यूएस मु सब गुडा मास रे डिराइव करथिले सेति पे सेमति नैथिले so weight of solid ताले केते जे पिले ws is equal to पिले 180 किलो न्यूटन मींस 18 किलो न्यूटन आफ्टर ओवन ड्राइंग ताले कोन हो गला पिले अगेन its specific gravity of solid is given 2.67
G is given 2.67 बोली G दे देछि आ कोन देछि determine the water content porosity void ratio degree of saturation draw the phase diagram एति क्वेश्चन देछि तो मो पाखे एति डाटा अछि मते वाटर कंटेंट गाडी छि तो वाटर कंटेंट रो पिले फार्मूला कोन दि तीनटा स्टेप रे हम जाई परिया फर्स्ट कहू वाटर कंटेंट केते गाडी वाटर कंटेंट इज वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड तो मते एही फार्मूला यूज करि परिम कि देखिलो वेट ऑफ वाटर देछि हां देछि केमिति ना टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड इज वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100 केते ही आसी गला तारे मोइट पिले वैल्यू लिखि देछि दैट इज जो पिले कोन ना 0.11 और 11% भी ताको कहि परियो 11.11% काहे ना दिस इज गिवन 20 दिस इज गिवन 18 डिवाइड बाय 18 तो एला केते 11% तो वाटर कंटेंट पर आ कोन काढी पिले व्हाट इज आस्क्ड पोरोसिटी एंड वॉइड्स रेशियो अच्छा तो वॉइड्स रेशियो पिले मु केन काढीबी देखो मते कोन देछि वेट ऑफ सॉलिड देछि हला एंड वॉल्यूम देछि पहले रो डी मु पाई पर कि ना रो डी इक्वल टू पिले कोन ना सॉरी दिस इज गामा डी तो गामा डी इज इक्वल टू पिले वेट ऑफ सॉलिड टू टोटल वॉल्यूम व्हिच विल बी इक्वल टू पिले केते हिजबो ना वेट ऑफ सॉलिड इज 18 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इज 1 सो व्हिच इज इक्वल टू रो डी रो गोटे फार्मूला थिले पिले कोन ना रो डी इक्वल टू g रो w by 1 plus e so सेई थ्रू पिले मु e काढी परिबि ना नाही so e will be how much पिले e will be 0.45 काहे कि ना मते सब जिंस एटी दे देला मु एटी ws by v काढ के जो वैल्यू काढी which will be equal to this much g is given w gamma w is 9.81 so e पाइला पर there is a relationship between e and n so n will be पिले e by 1 plus e which will give पिले केते दो वैल्यू ना n will be 0.312 n भी मिल गला बुझियला so in this way we can find a different values तापरे s पचजी so s equal to w g we know so e we have already found so s will be equal to w into g by केते जीवो ना e सब वैल्यू जानि छे सब वैल्यू पुट कर दियो पुट करले केते जीवो ना s equal to 0.654 so this is the value means सब जाको रिलेशनशिप को डेरिवेशन को जब तुम प्रॉपर्ली मन रखिबो then we will be able to find the values मु आहुरी गोटे भी वे कहि परिबी कोन रो काढीबी रो डी काढीबी रो डी काढिले सेतर वाटर कंटेंट को यूज करके मु कोन काढीबी पिले सॉरी रो डी यूज करके वाटर कंटेंट काढी परिबी मु एठिन तो डायरेक्ट वाटर कंटेंट काढली तो रिलेशनशिप को जत्ते तुम मन रखिबो तुम सेते डिफरेंट वे रे यू कैन फाइंड द आंसर्स बुझला सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ द फेज डायग्राम करछि पिले तमने यू कैन ड्रॉ लाइक दिस मैनर दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिस इज द वाटर पार्ट दिस इज द एयर पार्ट ताले वॉल्यूम ऑफ एयर हैला टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 1 मीटर क्यूब एठी लिखि परिबो हैला एंती जहां जहां भी वैल्यू पाउछ वॉल्यूम तो एथरे जेहेतु s काढी लो वॉल्यूम ऑफ वाटर केते काढी परिबो हां वॉल्यूम ऑफ वॉइड सॉलिड्स केते काढी परिबो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड केते काढी परिबो ना मास ऑफ सॉलिड सॉरी वेट ऑफ सॉलिड बाय कोन हमरो g